Hello you all, this is Mahesh Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel, that is Zenepex Education. In this video we are going to study about Aunt Jennifer's Tigers. This is a poem which is composed by Adrienne Cecil Rich, okay, who was an American poet. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. Okay, she is a feminist poet and supported and participated in a lot of movements which supported or which were aimed for increased rights of women, okay, increased equality of women. तो ये पोएट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था. इसके बाद हम देखेंगे कि जो पोएम हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी आखिरकार समरी क्या है. शॉर्ट में पहले समरी जान लेंगे, उसके बाद में मेन पोएम पर आएंगे. तो पहले देख लेते हैं कि समरी क्या है और आखिरकार इसमें कौन सा मोरल मैसेज है, क्या मोरल है इस पोएम का जो कि पोएट हमें पास करना चाह रही है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी. द पोएम अंडर स्टडी इज अ स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट बाय द पोएटिस अगेंस्ट द overarching patriarchal society wherein a woman's spirits, liberty and aspirations are mercilessly subdued, killed. The poetess had been a staunch supporter of women's rights, their right of free will, and hence wrote extensively on the subject throughout his productive years. Here she is describing, इस पोएम की बात कर रहे हैं हम. Here in this poem she is describing a detail that how a woman's cravings are destroyed under the institution of marriage. Aunt Jennifer, the character of the poem, is portrayed as a lady terrified of her husband. In her heart of hearts, she also longs to behave as an independent identity, but her conscience of being in a marital relationship with an intimidating husband deny her to do so. Finally, she gives expression to her longing in the form of embroidery. Okay, in the form of embroidery work where she depicts some tigers frolicking in the wild with all the gait and majesty. The presence of man there, जैसे कि वहाँ आपको दिखाया है पेड़ के पास में एक आदमी को दिखाया है. The presence of man there matters nothing to them. Hence Aunt Jennifer sought some respite, some solace for a while, otherwise she would have died with that heavy load on her conscience, pricking deep and agonizingly. The moral conveyed here by the composer is that neither women should be too submissive to the tyrannies. Okay, ना ही लेडीज़ को इतना ज़्यादा दबना चाहिए किसी भी फॉर्म में जेंट्स से. Nor man should do such kind of atrocities as to kill the very self of a woman. ना ही किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मैन को इतना ज़्यादा डोमिनेंट होना चाहिए कि वो दूसरे की जो आइडेंटिटी है उसी को किल कर दे. Women also own a space of their very own and that they should also. ओके, तो पोएट का ये मानना है कि लेडीज़ का भी अपना एक स्थान होता है और वो स्थान उनको मिलना भी चाहिए और उनको पूरे अधिकार के साथ उसको ऑक्यूपाई भी करना चाहिए. ओके, तो ये समरी थी. चलिए अब मेन पोएम पर आते हैं. पोएम में हम पहले वर्ड मीनिंग्स देखेंगे ताकि फिर पोएम आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके. ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आया शुरू में ही, दैट इज़ प्रांस.
प्रांस का मीनिंग होता है टू मूव इनर्जेटिकली, ओके, खूब एनर्जी के साथ, ऐसा लगे कि हाँ भाई एनर्जी से भरपूर हैं, इस तरह से जो चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रांस। ऐसे ही एक वर्ड आया है टोपास, टोपास के साथ कंपेयर किया गया है टाइगर को, ओके। तो टोपास क्या है, एक जेम होता है विच इज़ ब्राइटली येलो और ब्लू, ओके, इन कलर्स का होता है, अक्सर ये विदाउट एनी कलर भी होता है, ओके। तो टोपास के साथ ही इसको कंपेयर किया गया है। देन देर इज़ डेनिजेंस, डेनिजेंस किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों को कहते हैं, ओके, कहीं भी कहीं के भी किसी भी जगह के जो निवासी हैं, दे आर कॉल्ड ड्वेलर्स और डेनिजेंस। स्लीक, यहाँ स्पेशली जो यहाँ पे वर्ड स्लीक यूज़ हुआ है वो हुआ है स्मूथ नेस को करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए, ओके। शिवलरिक, फियरलेसनेस दिखाने के लिए हुआ है। सर्टेनिटी जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ हुआ है। ऐसे ही फ्लटर, ट्रेमलिंग के लिए यूज़ हुआ है। तो ये कुछ मेन वर्ड मीनिंग्स थे। चलिए अब मेन पोएम पर आते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. ओके, तो यहाँ पे आंट जेनिफर जो कि एक स्क्रीन पर, स्क्रीन से मतलब यहाँ वो कपड़ा है जिसपे कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ओके। तो उस पर एक कुछ टाइगर्स की इमेज बना रही हैं, वो क्रिएट कर रही हैं, और वो जो उस पर दिखाए गए हैं खूब उछलते हुए दिखाए गए हैं, एनर्जी से भरपूर दिखाए गए हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हुए दिखाए गए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं उस घने हरे जंगल में, इस तरह से लग रहे हैं वो जैसे कि कोई टोपाज रखा हो। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, टोपाज के जैसे लग रहे हैं, ओके, ग्रीन बैकग्राउंड में, जैसे कि कोई हमने टोपाज रख दिया हो येलो कलर का, ओके, क्योंकि इनका कलर येलो रहता है और जिस पे ब्लैक स्ट्राइप्स रहती हैं, ओके। तो इसीलिए उनको टोपास के साथ कंपेयर किया गया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जैसे कि हमने समरी में भी कहा था कि वे जो हैं इस चीज़ से कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ से उन्हें कोई डर नहीं है कि वहीं पे एक जो पेड़ बना रखा है एंड जेनिफर ने, उसके नीचे ही एक आदमी भी है, आदमी हैं रादर, ओके, वहाँ पे आदमी भी हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, दे डू नॉट केयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द मैन, ओके, वो उनको कोई डर नहीं है। इस तरह से ये जो है आंट जेनिफर की जो स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आंट जेनिफर जो कि इतनी ज़्यादा डरी हुई है मैन से, स्पेशली या उनके हस्बैंड से, तो इसीलिए उनकी जो स्पिरिट है जो कि आज़ादी चाहती थी, है ना, वो आज़ादी में जिसमें सांस लेना चाहती थी, वो खुद तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से टाइगर्स के द्वारा अपने आप को डिपिक्ट करने की कोशिश की, वहाँ अपनी सोल को डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि उनको आदमियों से कोई डर नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवलिक सर्टेनिटी, तो और वे बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं। उनकी जो मूवमेंट्स है उसमें स्पीड भी है, कॉन्फिडेंस है, ओके, और फियरलेसनेस भी है। तो वो सारे जो गुण हैं जो कि आंट जेनिफर के दबा दिए गए हैं, वो सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइगर्स। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ओके, तो यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि जब आंट जेनिफर ये कर रही थी तो उनके जो हाथ हैं, स्पेशली उंगलियाँ, वो बुरी तरह से कांप रही हैं, वो डर के मारे ट्रेम्बल कर रही हैं, ओके, कांप रही हैं वो, यहाँ तक कि उन कपकपाती उंगलियों से उनको जो आइवरी नीडल है जिससे कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसको भी होल्ड करना, उसको भी पकड़े रखना अच्छे से, वो भी भारी पड़ रहा है, वो भी ढंग से नहीं पकड़ पा रही हैं उसको। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल ने उनको शादी के समय जो अंगूठी पहनाई थी, ओके, उसका जो वेट है वो उनसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा,
ओके, यहाँ अंगूठी का वेट कोई इतना नहीं होता कि वो बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन वो जो कॉन्शियंस पे हावी हो गए हैं अंकल उनकी, और वो जो उसकी वजह से वो शादी उन्हें बोझ लगने लगी है, बहुत भारी लगने लगी है। ओके, यहाँ उस वेट को सिंबॉलिकली दिखाया गया है। वो जो मेंटल लेवल पे एग्नी है, जिससे वो जिस दर्द से, जिस पीड़ा से गुजर रही हैं, जो दिन रात जिसको सहती हैं, ये उस दर्द को, उनकी उस परेशानी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि वो जो अंकल की जो शादी की अंगूठी है और वो आंटी ने उंगली में पहन रखी है, उसका वेट इतना हैवी हो रहा है कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से ही उनके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ओके, ऑर्डियल्स स्पेशली एक पुराने समय में ये होता था कि अगर किसी को लगता था कि किसी ने पाप किया है समाज में, अगर समाज को लगता था, स्पेशली क्लर्जी को, यानी जो भी जो धर्म के प्रतिनिधि होते थे, स्पेशली अगर उनको ये लगता था कि इसने कोई पाप किया है, तो उसकी परीक्षा लेते थे कोई ऐसी, और उस परीक्षा में अक्सर उस पर बहुत सारे जुल्म होते थे, बहुत ज़्यादा जातियाँ होती थी, जुल्म होते थे, बहुत ज़्यादा उसको शारीरिक प्रताड़नाएँ दी जाती थी। ओके, तो उनकी वजह से अक्सर उन लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर कुछ लोग सरवाइव कर जाते थे तो ये माना जाता था कि वो इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि वो निर्दोष हैं। ओके, तो ऑर्डियल्स उसके लिए आया, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डियल वर्ड यूज़ किया गया है। शी वॉज मास्टर्ड बाय। ओके, ये ऑर्डियल वर्ड जो है, आप जैसे अगर आपने रामचरितमानस या श्री राम जी की कथा सुनी होगी तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ सीता जी की भी परीक्षा ली जाती है, अग्नि परीक्षा, तो वो कुछ कुछ ऑर्डियल के जैसा आप मान सकते हैं। हालांकि जो रियल के ऑर्डियल्स होते थे वो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होते थे। तो व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो यहाँ पे पोएटिस कह रही है कि भले से आंट मर जाएं, लेकिन ये जो शादी की निशानी है, जिससे कि उनको गुलाम करा गया, जिससे कि उनको एक तरह से उनके जो अधिकार हैं उनको छीन लिया गया है ना, उन पे अपनी इच्छाएं थोप दी गई, दूसरों की इच्छाएं थोप दी गई, मतलब अंकल की यहाँ पर। ओके, तो उनको वो हमेशा तब भी रहेंगे, वो भले से मर जाएं, लेकिन जैसे उनको दफनाया जाएगा तो ये अंगूठी उनके साथ रहेगी, तो इसलिए वो तब भी उस बॉन्डेज में रहेंगी, वो तब भी उस बंधन में रहेंगी, उनको इस बंधन से मरने के बाद भी आज़ादी नहीं मिलने वाली है ना। पोएटिस यहाँ देखिए कितने गंभीर ढंग से उसको पोर्ट्रे कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो बंधन है ना, जिसके द्वारा आंट जेनिफर की आज़ादी छीनी गई, वो उनको उस बंधन से मरने के बाद भी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। ओके, शी हैज़ टू डाई विद दिस पेन। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन यहाँ पे जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं है ना, जो कि यहाँ पे प्रांसिंग कर रहे हैं पूरे प्राउड के साथ, पूरी तरह से अनअफ्रेड हैं, वो उन्हें किसी का डर नहीं है, ये इसी तरह से आज़ाद रहेंगे। इट मीन्स यू कैन टेक समवन इन बॉन्डेज। ओके, आप किसी व्यक्ति को तो गुलाम बना सकते हो, लेकिन उसकी आर्ट को नहीं बना सकते। हो सकता है कि यहाँ कुछ ऑटोबायोग्राफिकल टच भी हो पोएट का। ओके, जैसे कि यहाँ आंट जेनिफर डिपिक्ट कर रही हैं, आंट जेनिफर को तो कैद कर लिया गया है, लेकिन उनकी आर्ट को कैद नहीं करा जा सका, और उन्होंने अपनी स्पिरिट को टाइगर्स की फॉर्म में उस पैनल पे उतार दिया। ओके, लाइकवाइज क्योंकि यहाँ आर्ट की जिक्र आई है, तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि हो सकता है पोएटिस को भी कुछ हद तक बॉन्डेज में रख लिया गया हो, कुछ हद तक उससे अपनी बातें मनवा ली गई हों, लेकिन आप उसकी आर्ट को नहीं बंधन में रख सकते, और उसने यहाँ इस पोएम के थ्रू अपनी जो आर्ट है उसको, अपनी जो सोच है उसको उजागर कर दिया है। ओके, तो ये पोएम का एक एक्सप्लेनेशन था। आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो हैं, पहली तो इसका देख लीजिए कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम इसकी देखिए आप, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, वूल, पुल, बैंड, हैंड, ए बी बी है। ओके, इसकी जो
राइमिंग स्कीम है पोएम की वो ए और बी है। ओके, आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो पहला है मेटाफोर, पहले ही टाइगर्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, ब्राइटोपस के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे मेटाफोर है। ऐसे ही यहाँ एनाफोर आए, जो थर्ड और फोर्थ लाइन है उसकी शुरुआत में दे वर्ड रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे एनाफोर आए। एलिट्रेशन लगभग आपको सभी में मिल जाएगा, ओके, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, आपसे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो वहाँ एलिट्रेशन, एसोनेंस जैसे नाम आप लिख सकते हो, क्योंकि वो लगभग हर पोएम में मिल जाएंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी में। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है टेरिफाइड हैंड्स, है ना, हाथों को डरा हुआ दिखाया गया है। टेरिफाइड हैंड, टेरिफाइड हैंड्स थोड़ी ना होंगे, टेरिफाइड कोई पर्सन होगा, ओके, कोई एनिमल होगा। टेरिफाइड हैंड्स नहीं होंगे, कोई उसका एक अंग नहीं टेरिफाइड होगा, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, बिकॉज हैंड्स रिप्रेजेंट द पर्सन। मेटाफोर फिर से यहाँ पे आया है, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, ओके, यहाँ पे फिर से मेटाफोर आया। एलिट्रेशन फिर यहाँ पे आया है ये प्रांसिंग और प्राउड में, ऐसे ही द टाइगर्स में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। होप यू वुड लाइक आवर hard labor. Okay, if it is so, if you find this video helpful, please don't forget to like and subscribe our channel. See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning.